آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں، آپ پر ہمارا اپنا الیکشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں کل ہم نے ویڈیو تھی پی ایم مودی صاحب کا انٹرویو تھا راجیش شرما جو کیا تھا، ویڈیو 1 گھنٹہ اور 36 منٹ کی تھی، تو اس کا ہم نے ہاف پارٹ کیا، کم از کم 50 منٹ کی تھی۔ تو آپ کی ریکمنڈیشن پر اب دوبارہ اس کا سیکنڈ پارٹ، اب ہمیں نہیں پتا کون کون سی باتیں ہوئی ہیں، کون کون سے آنسر کوشچنز ہوئے ہیں۔ دوستوں دیکھتے ہیں ویڈیو، باقی اس کا سیکنڈ پارٹ لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تو دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جا کر کے میں کھل کر کے کہتا ہوں کہ ایک ایکو سسٹم جو ان کے پاپوں کو سنوارنے کا ہی کام کرتی ہے اور دوسروں کے اچھائیوں کو برے میں کنورٹ کرنے کے لیے اپنی پوری شکتی لگا دیتی ہے، اور دیش کو اس سے میں سچیت کرنا چاہتا ہوں۔ اور اب جب سب جگہ پہ فیل ہو گئے تو انہوں نے جوڈیشری کا راستہ پکڑا ہے، عدالتوں میں جا کر کے بیٹھ جانا، ہو ہلہ کرنا اور پریستھتیوں کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ یہ بہت چنتا کا وشے ہے دیش کے لیے۔ آپ میں یوگیتا ہے، کھمتا ہے، صحیح ہے، لوکتنتر ہے، چناؤ لڑو، پارلیمنٹ میں آؤ، اپنی بات رکھو، سرکار غلط کرتی ہے تو اس کو روکو، طریقے ہیں، کرنے نہیں ہے، ہوا بگاڑنی ہے۔ اب ممتا دی نے کہہ دیا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے آرکشن کو لے کر کے، وہ نہیں مانیں گی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مودی سنویدھان بدل دے گا۔ اب اندرا جی نے کہا ہائی کورٹ کا فیصلہ میں نہیں مانوں گی، ایمرجنسی لائی۔ یہ اسی چٹے بٹے کے لوگ ہیں جی، وہ لوکتنتر کو نہیں مانتے ہیں۔ ان کے لیے چناؤ لوکتنتر کی شردھا نہیں ہے، چناؤ ستا پراپت کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کی شردھا لوکتنتر میں، متداتا میں، سنویدھان میں، بھارت کے رولز اینڈ ریگولیشن میں نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں جو پریوار واد کے خلاف بولتا ہوں نا، کیوں بولتا ہوں؟ کیونکہ لوکتنتر کے پرتی شردھا جب سماپت ہو جاتی ہے تب جا کر کے آپ کو پریوار کے واد کے بھروسے چلنا پڑتا ہے۔ اور یہ سارے لوگ، کوئی مجھے کہے، کوئی کسی کانسٹیٹوئنسی میں جا کر کے کہے کہ میں میرا بیٹا آپ کو سپرد کر رہا ہوں، یہ کون سا لوکتنتر ہے جی؟ یہ کون سا لوکتنتر ہے؟ جنتا جناردن طے کرتی ہے جی۔ وہ پاپا کی کانسٹیٹوئنسی ہے۔ سوال وہی ہے، وہ تو البم تو دکھا رہے ہیں، دادی سے شروع ہوتا ہے البم۔ سلام انڈیا میں ہمارے ساتھ ہیں بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی۔ ایک بریک کے رکیں گے اور بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ کیا احساس ہے جو بنا دیتا ہے ہر لمحے کو نیا؟ میری ماول چائے، ہر لمحہ نیا ہو جائے۔ اے بھارت ہم چل پڑے کس جنوں کس شان سے، جنت نما کشمیر سے، آسام کے باغان سے، دلی کا لہڑ بن لیے یو پی کے کھلیہان سے، مہاراشٹر سے، گجرات سے، کرناٹک سے، راجستھان سے، تب ہندوستان ملے ہندوستان سے۔ جے ہو وجے ہو، دیش ہو ودیش ہو، جے کے ہو۔ جب ہندوستان ملے ہندوستان سے، جے ہو وجے ہو، جب ہندوستان ملے ہندوستان سے۔ جے کے ٹائر، دیش کا ٹائر۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ ہیں بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی۔ ہم ان کے ساتھ منا رہے ہیں چناؤ کا اتسو۔ مودی جی، ایک بڑی شکایت ان سب لوگوں کی یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، کوئی بیل پہ ہے، کوئی جیل میں ہے، کہ لڑیں کیسے؟ جو لوگ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کرتے ہیں، اب دیکھیے، ناچنا نہیں تو آنگن بانکا، ایسا کیسی کہاوت ہے نا، آنگن ٹیڑھا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ ہاں، ایسی ایک کہاوت ہے۔ اب پراجے نشچت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تو ہے بھی مورل وکٹری گھوشت کرو، دوسرا ہے
ईवीएम को गाली दो। अब आपने देखा होगा कि तीसरे चरण के बाद ईवीएम मैदान में आ गया है। ईवीएम के लिए रोना धोना, आंकड़े क्यों पहले नहीं आए, बाद में क्यों नहीं आए। ड्यूरिंग इलेक्शन हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में विवाद खड़े कर दिए जाते हैं। मतलब बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारत के लोकतंत्र की दुनिया में प्रतिष्ठा न बने। भारत का लोकतंत्र बहुत जीवंत है, भारत के मतदाता बहुत जागरूक है, भारत की चुनाव प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है। इस पर वो सवालिया निशान खड़ा करना चाहते हैं ताकि दुनिया में, और ये हरकत छोटी नहीं है जी, इसको गंभीरता से लिया जाए और जो भी भारत को प्यार करते हैं उन सबको इस संकट को समझना होगा कि ये मामला सिर्फ ईवीएम कह करके चुनाव का पराजय का ठिकरा फोड़ने वाला है, इतना नहीं है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही सवालिया निशान दुनिया में लग जाए, ये इनका इरादा है। भारत में बेइज्जती, भारत की दुनिया में बेइज्जती हो, इसका खेल है। और मोदी जीत जाए तो आज दुनिया में जितनी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, यानी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक बॉडीज है, इस चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री दुनिया की सीनियर कैटेगरी में आ जाएगा। हर ग्रुप में वो सीनियर मोस्ट होगा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में। इनको अभी से हिसाब किताब लगाते हैं, उनके भी तो एडवाइजर है ना, देखिए यार ये तो ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसी डर में सब हो रहा है। लेकिन इससे देश का बहुत नुकसान। और लेवल पे भी ये लोग इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं। हमारे देश का चुनावी व्यवस्था ये कहती है कि अगर कोई पार्लियामेंट सीट में अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए तो वो चुनाव स्थगित होता है, ठीक है। अगर कोई पार्लियामेंट का कैंडिडेट उसका स्वर्गवास हो जाए तो वो सीट चुनाव स्थगित हो जाता है, उसकी डेट बाद में आ जाए। कोई मुझे बताए कि राजीव गांधी नाम का एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट के चुनाव का कैंडिडेट था, उनकी आतंकवाद में हत्या हो गई, उनकी सीट कैंसिल होनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी चुनाव, लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश का चुनाव रोक दिया, कोई लॉजिक नहीं था। और करीब 21-22 दिन दिए और उनके अस्थि लेकर के पूरे देश में यात्राएं चली और फिर चुनाव की डेट दी गई। तो कौन सा लेवल पे था देश के इलेक्शन कमीशन। और बाद में वो खुद कांग्रेस के कैंडिडेट बन के आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आप इलेक्शन कमीशन की बातें करते हो। और इसलिए जो न्यायिक हो रहा है वो उनको लेवल प्ले फील्ड नहीं लगेगा। बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने अब तक स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल फायदा उठाया। मेरी पार्टी के अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मान्य ऑपोजिशन पार्टी, 26 जनवरी 15 अगस्त को मेरी पार्टी के उस समय के अध्यक्ष को 7वीं 8वीं लाइन पे सीट मिलती थी। पार्टी के अध्यक्ष, इस देश के किसी इकोसिस्टम को नोटिस करने का मूड नहीं था। राजनाथ जी अध्यक्ष थे और मैं देखा कि 15 के अंदर उनका एक एमपी जो पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं था, उसको 4th 5वीं रो में सीट थी। देश भर में तूफान मच गया, अपमान कर दिया। यानी ये कैसी आप लोग दरबारी करते हो? किसकी दरबारी करते हो आप लोग? मेरा सवाल है ऐसे लोगों पर, क्या ये लोकतंत्र है? लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? और जब सच बोलते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है, और अगर सच बोलने की कोई सजा होती है उससे भुगतने के लिए मोदी हमेशा तैयार होता है। देखिए, उनको एक बात बहुत बुरी लगी है कि चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया। कोई जेल में डालता है क्या? मुझे बताइए। आपने नोटों के ढेर देखे कि नहीं देखे? आप नोटों के ढेर देख करके आपको क्या लगता है? क्या ये मेहनत की कमाई के पैसे हैं क्या? नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं।
अब नोटों के पहाड़ पकड़े जाएं और सरकार कुछ करेगी नहीं तो आप कहेंगे यार कुछ एडजस्टमेंट हो चुका है पीछे से। आप यही कहेंगे। आप दिल्ली के बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। हर स्कूल के बगल में शराब के ठेके लगा दिए जस्ट करप्शन करने के लिए और न्यायिक प्रक्रिया से। और अगर किसी को देखना है तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सीएम के लिए कल क्या कहा है, दिल्ली के मंत्री के लिए 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट करती है निर्णय, हम नहीं करते। न हम किसी को जेल भेज सकते हैं, न हम किसी को जेल में रख सकते हैं। ये निर्णय अदालत करती है। और मेरा मत है, अगर रेलवे के टिकट चेकर को आप तनख्वाह देते हो, उसका काम है ट्रेन में टिकट चेक करे और बिना टिकट वाले को जुर्माना करे, उसका काम है। आप काम करने वाले की तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? मान लीजिए कहीं से हेरोइन पकड़ा गया 1500 करोड़ का, तो हेरोइन पकड़ने वाले को आप तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? किसी गांव में किसी जगह पे चोरी हो गई और किसी पुलिस वाले ने हिम्मत करके चोरी पकड़ ली, तो गांव वाले मिलकर के उसका सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? ईडी 2200 करोड़ रुपया कैश पकड़ के लाया है। देश में पब्लिकली ईडी का सम्मान होना चाहिए। चिल्लाते क्यों हो? इसका मतलब है कि 2200 करोड़ आपका गया है। बोलो, आप में तो कोई दर्द है क्या? 2200 करोड़ गया उसका? आप में से किसी को दर्द है क्या? जिसको दर्द है वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है। मतलब 2200 करोड़ में कहीं कहीं उनका हिस्सा है। अब उनके 10 साल में 34 लाख रुपया कब्जा हुआ। एक स्कूल बैग में बच्चा लिख करके जाए इतना। हमने 2200 करोड़ पकड़ा, मतलब 70 टेम्पो चाहिए, 70 उसको भरने के लिए। ईडी काम कर रहा है। और मेरा एज ए प्राइम मिनिस्टर, मैं 2014 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़के आया हूं। देश की जनता ने इसी काम के लिए मुझे बिठाया है। मोदी जी, पहले ऐसा नहीं होता था, आपने ये नई चीजें शुरू की हैं। कोई नेताओं को नहीं पकड़ता था, वो राजनीति में आते इसलिए थे कि करें और बचे रहें। देश की जनता यही कहती है कि आप छोटे छोटे लोगों को तो जेल में डाल देते हो और बड़े बड़े खिलाड़ी छूट जाते हैं। अब ये देश में होगा नहीं। मुझे किसी के कोई मेरे लिए एडिटोरियल लिख दे, इसलिए मैं सरकार नहीं चलाता हूं जी। किसी टीवी पर मेरी हेडलाइन अच्छी आ जाए, इसके लिए मैं सरकार नहीं चलाता हूं। मेरे देश के लोगों की जिंदगी बने, मेरे देश से भ्रष्टाचार चला जाए, इसलिए मैं सरकार चलाता हूं। मैं मालाएं पहनने के लिए नहीं निकला हूं जी। आपकी सरकार के काम को लेकर के एक छोटा सा वीडियो मेरे पास में है। बहुत सारी बूढ़ी औरतें हैं, उन्होंने आपके काम के बारे में अलग अलग जगह, और ये सोशल मीडिया पर सब अवेलेबल है, बहुत वायरल हुआ है। ये एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मोदी जी पसंद है? अरे लीजिए, वो कहे वाली बात है। सबसे बेस्ट काम कर रहा है, सबसे उन्नति हो रहा है देश का। मोदी अच्छा नहीं था और कौन अच्छा है? इतना पार्टी आया, इतना गया, कोई देश का भलाई किया? वो जब तक रहेंगे तब तक देश चलाएंगे। गैस दिया, अच्छा, लैट्रिन दी, पानी दिया, पेंशन दी, वोट देता है मेरे को। अच्छा, वोट तो दोगे? वोट देंगे जरूर, प्लाट में देंगे। अच्छा। चाहे आप कुछ ना मिला। अरे हम कहिए नहीं कि योगी मोदी के लिए काम ऊपर खाना हम देखा दूसरे के वोट कहीं के दे, हमें खाएगा देना, पैसा देना। सच्चो? सब का झूठे। घर हमारा बना दिया, अच्छा, शौचालय हमारे बना दिए, 500 रुपये तिरसा डाला हमारे। और क्या भाई, वहाँ तो मोदी है, मोदी रहेगा जब तक मेरी जिंदगी। और क्या, ऐसी सरकार तो आई नहीं जैसी सरकार है भाई। एक तो मैं इन माताओं का बहुत आभारी हूं कि वो ऐसा खुल करके आशीर्वाद दे रही हैं। लेकिन मीडिया जगत के लोग जरा एनालिसिस करें कि बड़े बड़े नेता भी इतनी बारीकी से, इतनी स्पष्टता से नहीं बोलते हैं जितना एक अनुभव किया हुआ व्यक्ति बोल रहा है। मतलब ये सच्चाई बोल रही है, ये शब्दों का श्रृंगार नहीं है, ये भीतर से निकला हुआ एक आशीर्वाद का पत्र है जी। और यही मेरी ताकत है।
और मेरी सरकार की अगर कोई विशेषता है तो यही है लास्ट माइल डिलीवरी। आखिरी व्यक्ति तक जो योजना है वो पहुंचनी चाहिए। और मुझे खुशी है, ये जब मैं सुनता हूं मुझे खुशी है कि मैं इस काम को कर पाया हूं। और मैं इसीलिए, और मैं दोनों, अगर ये माँ आशीर्वाद दे रही तो वो भी काम इतनी ही लगन से करता हूं, और चंद्रयान जाता है तो वो भी काम उतनी ही लगन से करता हूं। मैं सभी सर्वांगीण विकास के पक्ष में हूं और मैं कोशिश करता हूं, लेकिन माताओं का आशीर्वाद मुझे हमेशा रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। मोदी आप हमेशा कहते हैं कि ये जो पैसा इन लोगों तक डायरेक्ट पहुंचता है वो डिजिटल है, इसलिए पहुंचता है। एस जयशंकर आपकी अदालत में आए, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताया। उन्होंने कहा जब वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना था, वो अमेरिका में थे, अपने बेटे को मिलने गए थे, तो रेस्टोरेंट में जाने लगे तो उन्होंने अपने मोबाइल से दिखाया और बेटे ने जेब से मुड़ा तोड़ा कागज़ निकाला, तो उनको लगा कि हाँ ये भारत है और ये अमेरिका है। ये एक समाचार सुनकर के आनंद होता है, लेकिन पार्लियामेंट में, देश के सुप्रीम कोर्ट में जिनकी धाक चलती है, ऐसे व्यक्ति जो कभी देश के वित्त मंत्री रहे लंबे अरसे तक, वे पार्लियामेंट में इस युग में ये कहे कि देश में मोबाइल कौन जानता है, इंटरनेट कौन जानता है, ये फिनटेक का तो क्या लेना देना है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ ही वर्षों पहले की बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ मेरा देश डिजिटल इंडिया के दूसरी है। G20 समूह में मैंने देखा, दुनिया का हर देश मुझे पूछता था कि इतना बड़ी रिवॉल्यूशन आई कैसे। और जब लोग आज भी विदेश से मेहमान आते हैं तो उनकी एम्बेसी उनको किसी रेहड़ी पटरी वाले के यहाँ ले जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये ऑनलाइन पैसे लेगा, बोले ऑनलाइन लेगा, लैंग्वेज नहीं जानता है तो भी। और इसलिए हमारे देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोविड के समय दुनिया के कई देशों ने, समृद्ध देशों ने अपने नागरिकों को पैसे देने की योजना बनाई है, लेकिन दे नहीं पाए, उनके पास मैकेनिज्म ही नहीं था। आज मैं जब किसान सम्मान निधि देता हूं ना, 2000 रुपये साल में 3 बार, मुझे 30 सेकंड लगता है 11 करोड़ के खाते में पैसा जमा हो, 30 सेकंड। हमने, मेरे लिए टेक्नोलॉजी, जैसे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं, तो एक तो ये जो एजेंसियां वो अपना काम करती है, लेकिन मैं भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करता हूं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने करीब 38 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है 10 साल में। राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। अब वो कौन सा पंजा ये 85 पैसे मार लेता था, क्योंकि उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं की सरकार थी। अब पंजे के हाथ में झाड़ू भी है, तो पहले पंजा 85 पैसे मारता था, 95 पैसे मारेगा, क्योंकि अब सफाई की सुविधा बढ़ गई उनकी। अब इसलिए आप देखिए, उस हिसाब से मैं देखूं तो 38 लाख करोड़ रुपीस अगर उस जमाने की पद्धति से चलता तो करीब 28 लाख करोड़ रुपया किसी पंजे ने मार लिया होता। अब ये पैसा सीधा जाता है, उसके खाते में जाता है, तब जाकर के आवाज निकलती है। ये जो दिल की आवाज है ना, उसके कान निकलती है, और उसको लगता है कि दिल्ली में उसका बेटा बैठा, उसका असर है। देखिए, सरकारें तो पहले भी रही, ब्यूरोक्रेसी भी यही थी, सिस्टम भी यही थे, तो आपने ऐसा क्या बदल दिया कि अब ये सीधा पैसा जाता है, ये बूढ़ी माताएं इस तरह की बात कहती हैं? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में अब तक जो प्रधानमंत्री बने हैं वो ज़्यादातर केंद्र की ही राजनीति का हिस्सा रहे हैं। बहुत कम प्रधानमंत्री हैं जो राज्य में काम करके आए हैं।
اور جو آئے ہیں وہ بھی بہت کم سمے کے لیے ان کو اوسر ملا ہے. میں دیش کا پہلا ایسا پردھان منتری بنا جس کو لمبے عرصے تک, لانگیسٹ ٹینیور ہے میرے اسٹیٹ کا, اور ایک اچھے راج کا لمبے عرصے تک مکھیہ منتری رہ کر کے آیا, اور وہ بھی ایک ایسا مکھیہ منتری جو کام کرنے والا مکھیہ منتری, یعنی فائلیں کھالے دیکھنے والا نہیں, بدلاؤ کی ویژن کے ساتھ کام کرنے والا. تو میرے پاس وہ انوبھو ہے. تو ایک تو اس انوبھو, اور جیسے میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا, شاید میں پہلی بار میڈیا کے سامنے بات بتاتا ہوں. میں جب تھوڑا لمبا سمے جائے گا تو جی بالکل آپ کے درشک بعد میں تنگ آ جائیں گے. نہیں یہ تو دیکھیے آپ بتائیے تنگ آ جائیں گے. میں دو انوبھو سنانا چاہتا ہوں, اس سے آپ کو پتا چلے کہ کام کیسے ہوتا ہے اور کیسے کرنا چاہیے. میں اچانک مجھے مکھیہ منتری بننا پڑا تھا 7 اکتوبر کو 2001 کو. میں کبھی ایم ایل اے نہیں بنا, میں نے کبھی پولیس تھانہ نہیں دیکھا تھا, مجھے کچھ یہ سرکار ورکار کچھ سمجھ ہی نہیں تھی. اٹس اے فیکٹ آف مائی لائف. اچانک مکھیہ منتری بنا تو بھوکمپ تھا وہاں, تو بھوکمپ کے کچھ مہینوں کے بعد مجھے کام ملا. تو میں سفر لینے کے ترنت بعد بھوکمپ گرست علاقے میں چلا گیا, کیونکہ اس شتابدی کا دنیا کا ایک بڑا بھوکمپ مانا جاتا ہے. تو میں دیکھا کہ لوگ کو 7-8 مہینے ہو چکے تھے بھوکمپ کو, شکایتیں کر رہے تھے, استھتیاں بھی مجھے کوئی نظر نہیں آئی بدلتی. تو میں نے دیکھا کہ بھی میں واپس آیا, میں نے میرے افسروں کی میٹنگ لی. پھر میں نے ان کو پوچھا کہ بھئی کیسے ہیں, کیا ہے, آگے کیسے کریں گے بھوکمپ کا. تو انہوں نے مجھے بتایا سارا کہ مارچ مہینے تک یہ ہوگا, مارچ مہینے تک یہ ہوگا, مارچ مہینے تک یہ ہوگا. میں نے کہا تمہارے دماغ میں ہے یہ جو فائنانشیل ایئر گھس گیا ہے, دیش اس سے نہیں چلتا ہے. مجھے پہلی لڑائی میری وہی ہوئی. میں نے کہا تم دماغ میں سے فائنانشیل ایئر نکال دیجئے, مارچ مہینہ نکال دیجئے. 26 جنوری جب 1 سال ہوگا, دنیا بھر کا میڈیا کچھ کچھ بوجھ میں آئے گا, اس دن وہ یہ دیکھے گا, تب اس کو یہ تم بورڈ لے کے مت کھڑے رہنا کہ مارچ تک کا ہمارا یوجنا ہے. مجھے بتاؤ تم دسمبر اینڈ تک کیا کرو گے, سارا پروگرام پری پون کرو. تو افسروں کو لگا یار آدمی کو کچھ سمجھ ہے. پھر میں نے کہا کوئی شاید 43 بلاکس ایسے تھے جو بھوکمپ گرست تھے. تو میں نے افسروں کو کہا سبھی سچیو ایک بلاک میں جائے گا, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے وہ وہیں رہے گا بھوکمپ گرست علاقے میں. منڈے کو شام کو میں میٹنگ لوں گا ریویو کی, اور جو بلاک میں آپ جائیں گے آپ مان کے چلیے کہ آپ اس بلاک کے چیف منسٹر ہیں, آپ ہی چیف منسٹر ہیں, کر کے آؤ. میں نے کہا اب یہ گئے, واپس آئے, میں نے میٹنگ لی. بولے صاحب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا کیوں؟ یہ بولے ہمارا نیم ایسا ہے. میں نے کہا نیم کس نے بنایا؟ بولے ہم نے بنایا. کیوں؟ ایئر کنڈیشن کا بن کے بنایا تھا. زمین پہ جا کر کے آیا, ان کو پتا چلا سرکار کے بنے ہوئے نیم ہی جنتا کے خلاف تھے. میں نے کہا نا آپ بلاک کے سی ایم ہیں, مجھے بتا کے آپ کیسا سی ایم میرا کام کرتا ہے بتاؤ. انہوں نے پھر سارے نیم بدلے, ریگولیشنز بدلے, اور ان کو لگا کہ پریکٹیکل ہونا پڑے گا. اور سچ مچ میں دسمبر اینڈ تک اتنا بڑھیا کام ہو گیا. اور میں نے جنوری میں آ کر کے دلی میں پریس کانفرنس کی تھی. میں نے دلی میں دنیا کے سبھی ایمبیسیز کو بلایا تھا, کیونکہ سبھی دیشوں نے مدد کی تھی گجرات کو. اور میں نے دیکھا کہ 22 جنوری سے دنیا بھر کا میڈیا وہاں پہنچا ہوا تھا. اور آپ میڈیا دیکھ لینا, سوائے تعریف کچھ نہیں ہے اس میں, سوائے تعریف کچھ نہیں. تو گورننس کو کیسے, وہی بیوروکریسی, وہی نیم, وہی سر. پھر میں نے یہاں آیا تو کیا کام کیا وہ دوسرا بتاتا ہوں. میں نے سارے سچیووں کی میٹنگ کی. یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں, میرے جیسے تو سینکڑوں نیتاؤں کو دیکھ چکے ہیں. کئی لوگ تو ایسے جو 2-2, 4-4 پردھان منتری دیکھ چکے ہیں. تو ان کے لیے تو یہ سب چنا ممرا ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے. تو میں نے میٹنگ کی. میں نے کہا بھائی یہ کام کرنا ہے. آپ لوگ جب مسوری سے نکلے ہوں گے, پہلی پوسٹنگ جو آپ کی ہوئی ہوگی IAS کا, گھر میں بڑی IAS بڑھ گیا وغیرہ, مگر پہلی جہاں نوکری کی تھی, جو چھوٹا سا ایریا رہا ہوگا جہاں آپ کو بھیجا گیا ہوگا,
میں نے کہا کہ آپ وہاں واپس جائیے, اسی گاؤں میں جائیے, ہو سکے تو پورے پریوار کو لے کے جائیے. اور اس سمے کہاں رہتے تھے, دفتر کیسا تھا, اس سمے گاؤں کیسا تھا, یہ سارا اپنے پریوار کو دکھائیے, خرچہ سرکار کرے گی. اور آ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ وہاں سے یہاں پہنچ گئے, جس گاؤں کو آپ چھوڑ کے آئے تھا وہ کہاں؟ مجھے کوئی کلاس نہیں لینا پڑا, سب نے آ کر کے کہا کہ صاحب ہماری آنکھیں کھل گئی. ہم 30 سال پہلے جہاں گئے تھے وہاں تو ویسا کا ویسا حالت ہے, ہماری زندگی تو بدل گئی, ہمارے بچے تو دنیا میں پہنچ گئے, وہ وہی ہے. میں نے کہا کس نے بنا ہی نہیں دیا. تو میں ان کو ریئلائز کرواتا ہوں, میں ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں. اس لیے سرکار وہی, دفتر وہی, فائل وہی, قانون وہی, نیم وہی, لیکن اگر تھوڑا طریقہ آپ بدل دیں تو استھتیاں بدلی جا سکتی ہے, اور وہ میں بدل رہا ہوں. میرا پہلا انوبھو دلی میں بیوروکریسی کو تب آیا جب میں پردھان منتری جن دھن اسکیم لے کر کے آیا, اور میں نے طے کیا کہ بھی بینکوں کا نیشنلائزیشن ہوا تھا غریبوں کے لیے, بینک کے دروازے کھولنے کے لیے. اندرا جی کے بھاشن سن لیجیے آپ. اور ساری بینکوں کو انہوں نے راتوں رات جبت کر لیا تھا. میں نے یہاں دیکھا کہ 50% اس دیش کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بینک کا دروازہ ہی دیکھا نہیں ہے. اب وہ کون ہے؟ ایس سی, ایس ٹی, او بی سی, وہی سماج ہے. میں نے کہا ہر ایک کا مجھے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے. تو صاحب بینک والوں نے کہا صاحب کچھ تو انہوں نے پونجی ڈالی. میں نے کہا ان کے پاس ایک پیسہ نہیں ہے, بنا پونجی ڈالنا ہے. تو پھر بولے کہ اسٹیشنری کا خرچہ ہوگا. میں نے کہا اسٹیشنری کا خرچہ ہم سرکاری بجٹ سے دیں گے, لیکن مجھے کھاتے کھولنے. لیکن بولے صاحب ہم گھوشنا کر دیتے ہیں جو بھی آئے گا. جو آئے گا نہیں, ڈھونڈنا ہے, کس کا کھاتا نہیں کھولا اس کے گھر جانا ہے, ڈھونڈ کے لاؤ. خیر میں نے سب بتایا. ہمارے ارون جیٹلی جی فائنانس منسٹر تھے, اب وہ یہیں سے پلے بڑے تھے آپ ہی کے بیچ میں, تو ان کی دنیا تو الگ ہی تھی. تو انہوں نے کہا مودی جی سب نیچے تک. میں نے کہا ایسے نہیں بھائی, میں ہر ہفتے میٹنگ لوں گا, اور میں کہا آپ کو بھی بیٹھنا ہوگا. تو قریب 30-40 افسروں کو ہر ہفتے میں بلاتا تھا, بتاؤ بھائی آج کتنے اکاؤنٹ کھلے, کون سی بینک کا کتنا پا. ارے بولے صاحب پرائم منسٹر کیسے کرتا ہے؟ میں کہا یہ پرائم منسٹر ایسا ہی ہے. اور پہلی بار بھارت سرکار کے ادھیکاریوں کو پتا چلا کہ کام کرنے والی سرکار کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور پھر میں نے بینک کے لوگوں سے باتیں کی. میں ایک ایک برانچ کو فون کرتا تھا جی کہ بھائی بتاؤ تمہارے یہاں کام کیوں ڈھیلا ہے. کوئی اچھا کرتا تو اس کو فون کرتا, یار تم نے بڑی محنت کی, تمہارے علاقے کے تو سارے بینک اکاؤنٹ کھل گئے, کیسے کیا. تو میں قریب 3 مہینے اس میں لگا رہا, اور آج مجھے گرو ہے کہ میرے دیش کے ہر غریب کا بینک میں اکاؤنٹ ہے جی. اور اس کے کارن یہ ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر ہوا ہے جی. اگر وہ نہ ہوتا, اچھا جب میں پہلے کھاتے کھلواتا تھا لوگوں کو لگتا تھا یار مودی جی کے دماغ میں کسی نے بھر دیا ہے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ مودی کی ڈیزائن بہت لمبی ہوتی ہے. اس سمے صرف کھاتے کھولتا تھا, میں آج اس کی زندگی بدل رہا ہوں اس کے مادھیم سے. اور آج لاکھوں کروڑ روپیہ بینکوں کے ان کے نام پہ جمع ہے جی. جو کبھی بیچارے گھر میں اناج کے اندر چھپا کر کے رکھتے تھے پیسے, اور کبھی پتی کی عادت, یہ دلی جیسی سرکار ہو کسی کو شراب پلانے کی عادت ڈال دی ہو تو وہاں سے وہ پیسے بھی مار لیتا تھا. تو میں نے کئیوں کی زندگی بچائی ہے جی. انہوں نے تو اچھا کیا تھا, ایک کے ساتھ ایک بوٹل فری. اس کا کارن ہے کہ ان کو ہر بوٹل پہ پیسہ کمیشن ملتا ہے. بھرشٹاچار ان کا بوٹل پہ ہے, اور اس لیے وہ فری دینے میں کمیشن ان کا تو پکا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی جگہ تو نوٹوں کی گڈیاں ملتی ہیں, میرے یہاں ایک چونی بھی نہیں ملی. ایسا ہے کہ وہ افسر رہے ہوئے, اس کو معلوم ہے کہ سرکار کس پرکار سے کرتے ہیں ان چیزوں کی, وہ تو گھیرا بندی کر ہی لیں گے. جو انوبھوی چور رہتا ہے نا اس کو بڑی سویدھا رہتی ہے. جو سرکار میں رہا ہوا افسر ہوگا اس کو معلوم ہوگا ای ڈی ایسے جائے گی, سی بی آئی ایسے جائے گی, اتنی چیزوں کو چوک چوکن کر لیجئے پھر پرابلم نہیں ہوگا. یہ سوچ کے رکھتا ہے جی. جیسے آپ لوگ ہیں اتنے سالوں, کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر آئے گا تو آپ آرام سے طے کر سکتے ہیں کہ ایسا کرے گا. ہم سوال پوچھ رہے ہیں بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی سے, آپ کا یہ جوش برقرار رہے. یہ سوالات اور جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک
डायनासोर का अंडा। ओह डैम! वर्ल्ड वॉर 1 की एंटीक गन। ओह डैम! फिर दीवार तोड़ो, फिर बनाओ। बर्जर डैम स्टॉप लगाओ। इसका नैनो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी चढ़ा वाटर प्रूफिंग का कवर जो बिना दीवार तोड़े डैम रिपेयर करे। बर्जर डैम स्टॉप। नो झंझट, डैम स्टॉप फटाफट। जिंदगी स्वाद है, स्वाद ही जिंदगी। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम उनसे पूछ रहे हैं सवाल उनके 5 साल के काम का। जनता में से 2-3 सवाल हमारे पास में हैं। सुधीर सेठ का एक सवाल है। सुधीर सेठ, मेरा सवाल है, जो आपके परिवार के सदस्य एनआरआईज बाहर रह रहे हैं, उनका बार बार हमें पूछना होता है कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया इंडिया ने पोस्ट कोविड और इतनी वॉर्स के बाद भी। वो कह रहे हैं कि जो दूसरे मुल्क हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं, वो इनको कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो इतनी महंगाई है, यूरोप में, अमेरिका में, ये मोदी जी ने कैसे कंट्रोल करके रखा है? ऐसा है कि मैं जब कोविड के समय मैं बहुत लोगों को मिलता था, कोविड के समय वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करता था, तो दुनिया भर के मैं नोबेल प्राइज़ विनर वगैरह ऐसे ऐसे लोगों से भी मैं पूछता था भाई स्थितियों में क्या लगता है आपको। और मुझे, और यहाँ आपने देखा होगा जो लोग आज उद्योगपतियों को गाली देते हैं, उन लोगों ने कोविड के समय बयान है कि आप उद्योगों को पैसे दो, उनके बयान है। उनके थियरी ये था कि नोट छापो और नोट बांटो, वरना देश बचेगा नहीं। अब ये एकेडमिक वर्ल्ड के ये इकोनॉमिस्ट लोग थे, नोबेल प्राइज विनर लोग भी मुझे आकर के भी मिलते थे। मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं न नोटें छापूंगा न मैं नोटें बांटूंगा। ये एक निर्णय मैं करी दूरी दुनिया में शायद मैं अकेला इंसान हूं जिसने इतना बड़ा कठोर निर्णय किया। मैंने कहा मैं बांटूंगा तो अनाज बांटूंगा, मेरे गरीब के घर का चूल्हा जलता नहीं, वो भूखा नहीं रहना चाहिए, बाकी सब संभालूंगा। और फिर मैंने एमएसएमई को कहा कि बैंक से आपको क्रेडिट देने की मैं व्यवस्था करता हूं, आप बैंक से क्रेडिट लीजिए और अपनी ताकत बताइए, तो उनको मैं अवसर दूंगा। उन सारी नीतियों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये हुआ कि मेरे यहाँ जो नोटों बांटने के कारण जो इन्फ्लेशन की स्थिति बनती है, मेरा देश उस चक्कर में नहीं फंसा। ये अचानक नहीं हुआ है, एक के बाद एक कदम लिए हैं जिसका परिणाम है। और इन कदमों के पीछे कोई एकेडमिक इकोनॉमिक्स मुझे काम नहीं आ सकता है। मेरा 13-14 साल का मुख्यमंत्री के नाते जो अनुभव है वो मुझे काम आया है। मैं आपको हैरानी होगी जान करके, हिंदुस्तान में शायद नेशनल लेवल पे मैं अकेला एक ऐसा लीडर हूं, शायद, मैं शायद कह रहा हूं, जिसने इस देश के कम से कम 90% डिस्ट्रिक्ट्स में रात्रि मुकाम किया है। इस देश के 90% डिस्ट्रिक्ट में रात्रि मुकाम किया हुआ मैं इंसान हूं, दरी पर सोकर के निकला हुआ इंसान हूं, और इसलिए मुझे जमीनी चीजों की समझ है और यहां मेरे पास इंफॉर्मेशन की रिसोर्सेज है। इन सबको जब मिलाकर के मैं निकालता हूं, उसमें से एक पॉलिसी बनती है और उसका परिणाम है कि आज इंदिरा जी के समय सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन था हमारे देश में, मनमोहन सिंह के समय आज से भी ज्यादा इन्फ्लेशन था। इतना ही नहीं, अगर लाल किले से पंडित नेहरू का एक भाषण आप यूट्यूब पर जाएंगे, मैं चाहूंगा कि ये गूगल गुरु वाले जितने विद्यार्थी हैं वो जरा यूट्यूब पर जाकर के देखें। पंडित नेहरू का लाल किले का भाषण है और लाल किले के भाषण पे, वैसे
आप इंदिरा जी का भाषण सुनिए, नेहरू जी का सुनिए, राजीव गांधी जी का सुनिए, मनमोहन सिंह जी का सुनिए, इन सब के भाषण में एक चीज कॉमन है। एक, गरीबी हटाओ, दूसरा महंगाई, इन सब के भाषण में है, लाल किले से। और कारण क्या दिया नेहरू जी ने? नेहरू जी ने कारण ये दिया कि महंगाई बहुत है, मैं जानता हूं आपको तकलीफ होती होगी, लेकिन आपको पता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लड़ाई चल रही है, उसके कारण हमें जरा महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। ये उस समय उनका भाषण। तब दुनिया का ग्लोबलाइजेशन का माहौल कहीं नहीं था। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई से भारत का कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद भी भारत की महंगाई के लिए उन्होंने ठिकरा फोड़ा था नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई में। नेहरू जी का भाषण अवेलेबल है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अभी तो जो लड़ाइयां चल रही हैं उसमें फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल, तीनों पर सीधा इंपैक्ट है। इसके बावजूद भी आज दुनिया में यूरिया की बोरी 3000 रुपये में बिकती है, मेरे देश के किसान को 300 रुपये से भी कम में मिलती है। तो हमने हर चीजों को उस प्रकार से सिस्टमैटिक कंट्रोल किया हुआ है। उसका परिणाम यह है कि देश में ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं चल रहा है, देश में स्कैरसिटी की भी समस्या नहीं आ रही है, ठीक ढंग से चला पाए हैं। ये लोग इतनी गालियां दे रहे हैं, लेकिन चिपकती क्यों नहीं है? चिपकती इसलिए नहीं कि ये पुराने डायलॉग लेके घूम रहे हैं जी। अब आप पुराने डायलॉग से नई फिल्म बनाओगे तो नहीं चलेगी जी, बेकार में मेहनत कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपका जोश बरकरार रहे, हम लौटेंगे थोड़ी देर। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया। मेरी मावल चाहे हर लम्हा नया हो जाए। है भारत हम चल पड़े किस जुनून किस शान से, जन्नत नुमा कश्मीर से आसाम के बागान से, दिल्ली का लहड़पन लिए यूपी के खलिहान से, महाराष्ट्र से गुजरात से कर्नाटक से राजस्थान से, तब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो देश हो विदेश हो जय के हो। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जेके टायर, देश का टायर। वेलकम बैक। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके 5 साल के काम का हिसाब किताब मांग रहे हैं। हम फाइनल राउंड में हैं, बस 2-3 मिनट में। एक सवाल राजेंद्र टिकिया का है। हिंदुस्तान की राजनीति जो अभी तक देखी है उसमें सोनिया गांधी जी जो कर रही हैं वो राहुल गांधी जी के लिए कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जो कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही शरद पवार, ममता बनर्जी, ये सब नेता अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। आप जितनी अथाह मेहनत, आपकी मेहनत के मुरीद तो आपके विरोधी भी हैं। हम सब ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, फिर आप इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हर कोई राजनीति में, अभी जितने दलों के आपने नाम दिए, ये दल ऐसे हैं जिनमें 3 विशेषताएं कॉमन है ये इंडिया अलायंस में, और उनको जोड़ने का कारण भी है। ये सभी गौर सांप्रदायिक हैं, गौर जातिवादी हैं और गौर परिवारवादी हैं। अब ये हिंदुस्तान में हर किसी के मन में सवाल उठता है, कुछ लोग अलग तरीके की बुद्धि, इतनी एनर्जी लाती कहाँ से, ऐसे पूछते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतनी मेहनत काहे कर रहे हो, क्यों मर रहे हो यार, 10 साल हो गए। मुझे एक नेता मिलने आए थे एक बार, बहुत बड़े लीडर, पहली टर्म में मेरे आखिरी 5वां साल था,
बोले मोदी जी अब प्रधानमंत्री बन गए, इससे आगे क्या होता है दुनिया में, इतनी मेहनत क्यों करते हो, ऐसा मुझे कहा था। क्योंकि उनके एक ही प्रकार की सोच में से देश की राजनीति चली है। मैं समझता हूं कि सब लोग काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं। वे भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करते हैं, मैं भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करता हूं। वे भी अपने परिवार के लिए करते हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए करता हूं। उनके परिवार में 5-6 लोग हैं, तो उनको 5-6 लोगों के लिए मेहनत करनी होती है, तो उतने घंटे में चल जाता है। मेरे परिवार में 140 करोड़ है, तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेरे परिवार में भी 5-6 होते तो मुझे भी कुछ नहीं करना, इधर से 2-4 इंटरव्यू दे देता, रजत शर्मा को जरा चाय पिला देता, मेरी गाड़ी चल जाती। लेकिन मैं 140 करोड़ मेरे परिवारजन के लिए जीता हूं और इसलिए मेहनत भी करता हूं। उनकी जिंदगी, उनके सपने, और मैं कहता हूं आपके सपने, ये मेरा संकल्प है और मेरा पल पल आपके लिए है, मेरा पल पल देश के लिए है। और इसलिए मैं कहता हूं कि 24/7 फॉर 2047। मोदी जी, एक क्योंकि चुनाव का वक्त है, तरह तरह के प्रेडिक्शन और दावे किए जा रहे हैं, क्या क्या दावे कर रहे हैं लोग, वो एक बार मैं दिखा देता हूं। ये मेरा फाइनल सवाल होगा। चुनाव ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में खत्म हो गया है। पिछले 4 फेजेस के परिणाम साफ है और नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जो 74 की बातें करते थे, अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहां खुलेगा। एक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई खाता खोल पाएगी। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हमारे जितने भी सर्वे आ रहे हैं, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये 2019 के वीडियोस हैं। आप एक काम अच्छा किया 2019 की जगह, मैं तो कहता हूँ आप 2014 के निकाल दीजिए, यही डायलॉग है। 2019 के निकाल दीजिए, यही डायलॉग है। और 2024 में भी वही डायलॉग चल रहे हैं। और जनता ने भी अपना मिजाज वैसा कि वैसा रखा है कि इनकी शब्दों की कोई असर उन पर नहीं है। और निराशा है तो पहले वो कहते थे कि मोदी 400 पार आंकड़ा कैसे दे सकता है, मतलब कि उसने ईवीएम में कुछ गड़बड़ किया है। अब मैं उनको पूछता हूं कि तुम आंकड़ा कहां से देते हो, तुमने वो कौन से ईवीएम को पकड़ा है, बताओ। अब देखिए, उनको आपने देखो, गंभीर से गंभीर पेशेंट आएगा ना, तो भी डॉक्टर कहेगा नहीं चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को जरा दौड़ाने के लिए, मीडिया में जगह बनाने, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, अब इतना भी न कर दे भाई। अब 4 जून के बाद बेचारे परेशान हो जाएंगे। 4 जून तक तो जिंदा रहने दो। 4 जून की बात नहीं, अब आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। ऐसा है कि मैं अभी भी मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे किसी विशिष्ट काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है, वरना मैं जिस जिंदगी से निकला हूं वहां आने का कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है जी। कोई रास्ता नहीं जो मुझे यहां ले आए। ईश्वर ने ही इस काम के लिए मुझे कहा है, मुझे भेजा है, और मेरा मार्गदर्शन भी परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। मुझे रास्ता भी परमात्मा स्वयं दिखा रहे हैं। परिश्रम का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का जो जज्बा है वो भी परमात्मा स्वयं की कृपा से मिलता रहता है, और उसी को लेकर मैं करता हूं। और मुझे पक्का लगता है कि विकसित भारत 2047 तक का टारगेट ये भी ईश्वर ने ही मुझसे करवाया है, और जब तक पूरा नहीं होगा वो मुझे वापस नहीं बुलाएगा। और आज दुनिया में कहीं और जगह नहीं है मेरे लिए, यही है। क्योंकि हिंदुस्तान को दुनिया के लिए भी कुछ करने के लिए, देश का, आप अगर विवेकानंद जी को पढ़ा होगा, श्री अरविंद को पढ़ा होगा, भारत सिर्फ एक देश नहीं है,
भारत एक पर्पज को लेकर के देश है जो विश्व कल्याण उसके ही हाथों से होना है। मोदी जी, आपके लिए एक व्यूअर ने 4 लाइनें लिख के भेजी हैं। इन्होंने लिखा है, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, हवाएं खामखा मेरे खिलाफ हैं। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी अंधेरों से है, हवाएं खामखा मेरे खिलाफ हैं। हवाओं से कह दो आजमा के दिखाएं, बहुत दिए बुझाए हैं, एक दिया जला के दिखाएं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं सबका, बहुत धन्यवाद। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी की बात से कन्विंस हैं, वो खड़े होके हाथ उठा के ताली बजा के समर्थन करें। इंडिया टीवी के ब्लॉकबस्टर शो मोदी विद रजत शर्मा ने नया इतिहास रच दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों लोग एक साथ इस शो को लाइव देख रहे थे। प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही लाखों लोग इंडिया टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ गए थे। टेलीविजन इतिहास में ये पहली। तो जी दोस्तों, वीडियो खत्म हो गई, ये सेकंड पार्ट था। कल हमने इसका पार्ट 1 किया था। तो दोस्तों गर्मी भी बहुत है, तो आपकी वजह से ही तो फ़ैन बंद किया हुआ है, कि पंखे बंद किए हुए हैं, एयर कूलर बंद किया हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से शोर आता है और वीडियो की जो आवाज़ है ना वो सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो ना मतलब का जो पसीना है वो आया वो है। और एसी जो लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसमें भी आगे एक सीन है, वो मैं नहीं खोल कर बता सकता। तो इसके लिए ये पसीना आपको नज़र आ रहा होगा। तो एयर कूलर दूसरा है वो, उसका काफ़ी शोर होता है, पंखे का भी काफ़ी शोर होता है, जिसकी वजह से, लेकिन बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई नहीं इशू। अच्छा खैर, वीडियो में जो थी बातें काफ़ी ज़्यादा पहले इस बार में लोगों की बातों का जवाब भी दिया कि मुझे सवाल एंड वो पूरी बड़ा अच्छा मेन जो है इंपॉर्टेंस वाला हिस्सा वो ये निचोड़ है। उन्होंने कहा कि जो लालू प्रसाद यादव है या सोनिया गांधी है या राहुल गांधी या कोई ना कोई अपनी परिवार के लिए अपनी जो है उनके लिए करा है। उन्होंने कहा आपका तो भारी आप क्यों कर रहे, आप स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, बड़ी पायदार बात थी। उन्होंने कहा कि इनकी परिवार 4-5 फैमिली मुश्किल होती है ना, मतलब किसने मुझे सब करते मुझसे जाएगा, अब आप ये बन गए, अब आप ये स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। तो उसी सवाल का ये दोनों का जवाब एक ही जवाब में दे दिया। उन्होंने कहा कि कुछ फैमिलीज होती हैं 2 अफराद पर मुश्तमिल, 5 पर 10 पर, तो उनकी उस लिहाज से स्ट्रगल होती है। बड़ा हैवी ये स्टेटमेंट थी। उतने घंटे ये नहीं कि वो काम करते। उन्होंने कहा मेरी फैमिली जो है कि पूरे इंडिया जो है वो 140 करोड़ है, तो इसलिए मुझे स्ट्रगल करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से मैं मतलब स्ट्रगल ज़्यादा कर रहा हूँ। तो ये मोदी साहब ने जितनी बातें की, बड़ी शानदार उनका ये वाला जो स्टेटमेंट है, यकीन करे दिल को लगी यार। जो मेरी बात उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली 100 यार, हर बात पे वो ये एग्जांपल देते थे यार। एक देखे ना कि बंदा दूसरे बंदे से जब गुफ्तगू करता है ना, बातचीत करता है, तो उसको जानने के लिए जो उसकी बातचीत होती है उस अंदाजा लगाया जाता है किस करैक्टर का है, ये किस तरह का शख्स है। तो मोदी साहब की मैं सुन रहा हूँ, बड़े गौर से मैंने सुनी है उनकी स्पीच, तो मुझे भी ये दिल से यकीन हो रहा है कि मोदी साहब अपनी कंट्री के लिए बहुत ही मुख्तलिफ निहायत। एक तो होता है ना फर्जी वाले के लिए, जिस तरह हमारे पॉलिटिशियन करते हैं, ऊपर से बातें करते रहते हैं कि हम बड़े अपने मुल्क के लिए जो है ना मुख्तलिफ हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इस तरह के।
लेकिन जो मोदी साहब है ये हकीकत में अपने मुल्क के लिए मुखलिस और अपनी कंट्री को कहाँ से कहाँ लेकर चले गए। क्योंकि भाई जिसके पास फैमिली होती है, जिसके बच्चे होते हैं, बीवी होती है, तो उसको एक किस्म की हिस्स होती है कि मैंने पैसा कमाना है और अपने बच्चों को देना। नहीं ये नहीं भाई, जो नहीं के पास उनको देना होता है डेफिनेटली। जब भाई बोला था कि हर एक की फैमिली राहुल गांधी को देती है, सोनिया गांधी जो है, तो इस तरह हर एक जो बंदा करता है वो अपनी फैमिली को देता है। लेकिन पीएम मोदी साहब का जो मामला है बिल्कुल उल्ट है। उन्होंने कहा कि मेरी सारी और सारी जितनी भी फैमिली है ये 140 करोड़ मेरी आवाम है, तो इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ। और एक सवाल जो उन्होंने और जो किया था कि आपने आते ही ना जो इलेक्शन से पहले आपने जो मेरे ख्याल में 2 का नाम लिया, उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। तो उस पर मोदी साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि मैं कौन होता हूँ उनको जेल में रखने वाला या डालने वाला। 2200 करोड़ रुपया उनसे बरामद हुआ है, ढेर लगे हुए हैं। तो जब पैसे इतने ज़्यादा ढेर लगे होंगे वो उनकी मेहनत के थोड़े होंगे। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, कानूनी इदारे हैं जो कानून बनाने वाले, उन्होंने उनको अंदर डाला है। वो कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ। तो बात बिल्कुल ठीक है। 2200 करोड़ जो है वो उनकी मेहनत का थोड़ा होगा, करप्शन के पैसे ही होंगे। तो इसी वजह से उन्होंने जेल में उसको जाना पड़ा उनको। फिर देखें कि जितनी डीपली पीएम मोदी साहब बात कर रहे थे, अब देखें ये आम बंदा नहीं कर सकता। मतलब आम बंदा का मतलब ये है कि जिस तरह के आम पॉलिटिशियंस होते हैं हमारे, जैसे MP या हमारे वजीर मशीर या PM होते हैं, वो इस तरह की बात है। देख कितना डीप स्टडी उन्होंने किया है कि किस तरह का मतलब वो रखते हैं। पहले चोरी के डर से गंदम की बोरियों में डाल के रखते हैं, पैसे रखते थे, तो अब उनको सुरक्षा मिली है। तो जो पूरी का पूरा एक सिनेरियो बनाया, वाकई में ऐसा होता गाँव यार हमारे गाँव में नहीं हुआ था। एक दफ़ा एक बंदा डेरे पे रहता था, तो उसने अपनी जो पाथियाँ हैं उनमें पैसे डाल दिए। वो कोई पाथियाँ उसने इकट्ठी की, लपेटी और लेके चला गया, वो उसके पैसे भी उसमें चले गए। ऐसे भी करते हैं, होता था, ऐसा ही होता है। तो ये दोस्तों पीएम मोदी की जो लेवल है ना, लेवल का मतलब ये है कि उनको एक चीज़ का पता है कि कहाँ क्या कैसे हो रहा है। और ये वही कहता है जो जाता नहीं।